ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਸਿੱਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਹੈ ਉਹ 360 ਹੈ। 3 ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਬਫੈਲੋ, ਘੋੜਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਥ ਗਾੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟੀ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟੀ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਐਕਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਨਕਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ नहीं ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। गुड, बहुत बहुत अच्छा विक्रांत जी, बहुत अच्छा। और कोई हाँ जी सर, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सर मैं ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ TFT ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 2016, 17, 18, 19 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2013 ਚ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਟਰੋਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਨਕ ਆਵੇ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ है? हेलो सर। हेलो सर, प्रियंका बोलना चाहती है। हाँ, मेरे पास ना फोटो नहीं आती किसी की ना, इसलिए थोड़ा सा नाम बोल दिया करो। ओके सर, प्रियंका बोल रही हो? हाँ जी सर, मैं जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैं छत पे थी, तो मैं आवाज सुन रही थी गाड़ियों की। गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, सबकी गाड़ियों की आवाज डिफरेंट है। तो उसी के साथ मुझे एक बचपन की एक बात उसके साथ याद आई। जब पापा काम से आते थे अपने, तो हमें पता था, मुझे और दीदी को, कि ये पापा की बाइक की आवाज, और पापा पिछले रोड पे होते थे, हमें पता लग जाता था कि पापा आ रहे हैं। तो वो एक ऑब्जर्वेशन थी हम लोगों की कि हमने पहचान ली थी। हालांकि हर गाड़ी की आवाज डिफरेंट होती है। हम जब किसी व्हीकल की सर्विस करवा देते हैं तो उसकी डिफरेंट आवाज हो जाती है।
जब हम किसी सर्विस नहीं की होती है किसी व्हीकल की, तो उसकी डिफरेंट वॉइस होती है। तो हमने वो ऑब्जर्व कर ली थी कि पापा की बाइक है और पापा आ गए हैं। सो ये चीज मुझे याद आई कि हाँ, उस टाइम पे भी बचपन से ही ये जो है सफर ऑब्जर्वेशन का शुरू हो जाता है, बट हम उस चीज को कभी उस वे में हमने सोचा नहीं कि ये क्या था। तो अभी वो सोचने को मिला। और इसके साथ सर एक चीज और मैंने सोची कि जब हम बोलते हैं कि कई चीजें जो होती हैं बोलने से नहीं, सिर्फ आंखों से समझ में आ जाती हैं, आंखों से हम बात कह देते हैं। तो मुझे वो कहना था कि अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हमारी मदर है, हमारे फादर हैं, हम उन्हें जानते हैं, तो उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो हमें, जैसे हम मम्मी को अगर मैं कहूंगी मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, तो मम्मी जस्ट मुझे ऐसे लुक कर देंगे, मुझे समझ में आ जाएगा उन्होंने नो कह दिया है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कनेक्टिविटी हम जानते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पर्सन को नहीं जानते हैं, हम नहीं मिले हैं, बट हम फिर भी कई बार पहचान जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है पर्सन। हालांकि इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग है। मे बी वो एक एक्शन का रिएक्शन है। इस जैसे हमने चिड़ियाघर प्ले में भी देखा था कि सिर्फ दो पर्सन हैं और वो नहीं जानते हैं एक दूसरे को, और वो बात करना चाहते हैं। हालांकि उसमें काफी थे ऐसी चीजें जिसमें वो एक्शन के साथ रिएक्शन कर रहे थे। तो मे बी यही वो चीज थी। अगर किसी हम अननोन पर्सन के साथ, अगर कोई जुबान के साथ, अगर हम लफ्जों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद एक्शन रिएक्शन ही होता है। तो सर ये मैंने सोचा। बहुत बहुत अच्छे प्रियंका, बहुत अच्छे, गुड। और कोई किसी का कोई एक्सपेरिमेंट किया किसी ने और कोई इस बारे में काम किया हो? सर ईशू ने अपना हैंड रेस किया है। ईशू आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। अभी मैं अपने, जब मेरे को 10th क्लास की छुट्टियां पड़ी थी 3 मंथ्स की, तो मैंने गवर्नमेंट कंप्यूटर कोर्स के लिए ना ज्वाइन किया था। तो वहां पर ऐसे डफ एंड म्यूट बच्चे भी आते थे, तो वो हमारे फ्रेंड्स थे। तो हमारा बोलना अलग, उनका समझाना, जैसे हमसे वो बात करते थे, तो हमें ऐसी चीजें कई थी कि हमें समझ नहीं आती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे। तो अब जैसे हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी है ना अपनी बात समझाना या किसी की बात समझना। तो जो उनकी लैंग्वेज थी, उनको हाथों के इशारे, आंखों के इशारे जो थे, उनको मैंने बहुत मतलब ऑब्जर्व किया था। तो अभी मतलब मैंने जब कल सोचा, तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि जैसे कट होता है, तो वो आंखों से और बॉडी लैंग्वेज उसकी बहुत बोलती है एक्टिंग में। तो जब मैंने वो चीज ऑब्जर्व किया उनकी, तो मुझे लगता है वो शायद मतलब आज मेरे काम आ सकती है, उनकी जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि बहुत मतलब जैसे मैंने उन्हें देखा है, बहुत कुछ मतलब उनसे ऑब्जर्व किया है, उनका बोलना। और कुछ कुछ लैंग्वेज तो मैंने जैसे उनके साथ रह के 3 मंथ्स में सीखी भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो उनकी जो भाषा वगैरह वो भी समझ लेते हो आप, जो इशारे होते हैं उनके, ये करने के, माइम के दो? हाँ जी। इनको भी ऑब्जर्व करके समझ आते हो? हाँ जी। मतलब जैसे वो समझाते हैं, ये ए है, ये बी है, हाँ हाँ, ये सी है। गुड गुड, हाँ जी। वेरी गुड। तो हाँ जी। गुड। कोई और? कोई और? नहीं सर, आई थिंक नहीं सर, कोई और नहीं है सर। हाँ जी हाँ जी। और चलो वैसे भी एक सेकंड, सॉरी, मुकुल ने अपना हैंड रेस किया है। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मेरी सर आज एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सर अगर हम
मतलब बाकियों का पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर हम एक बार कोई आवाज सुन लें तो हम उसे जब चाहे तब अपनी इमेजिनेशन से सुन सकते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ आज कि अगर हम एक बार कोई हमने 1 महीना पहले कुछ आवाज सुनी, उसे ऑब्जर्व किया, तो उसे मैं आज भी अपने माइंड से फिर से सुन सकता हूँ, वो मुझे फिर से सुनाई दे सकती है। जैसे सर मैं चंडीगढ़ में जहाँ रहता था, तो वहां पे जो दरवाजा है मेरे घर का खुलने का, तो सर उसकी आवाज मैं अभी भी इमेजिन कर सकता हूँ कि वो कैसे आवाज करता है। सर मुझे सर ये चीज फील हुई आज छोटी सी। बिल्कुल सही बात है। क्या है कि आज हम में से हम यही सोचते थे कि हर रोज कोई 5 व्यक्ति अपने अपने जो एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करे। आज सबसे पहले जैसे भवशील ने बात की, भवशील ने कल अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया और अदरवाइज उनका पहले सोचते थे कि ये उनका दायित्व है, ये काम उनका करना है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, क्यों वो ओवर केयरिंग क्यों है, उनकी ड्यूटी है, कुछ इस तरह से उसने सोचा। और एक कला के माध्यम से सोचा। अब ये आर्ट है इस बात को सोचना कि जब उसने इस ढंग से सोचा, एक तो अपने आप के लिए अपनी कला के बारे में सोचा, फिर उसने अपने जब ये पेरेंट्स के बारे में सोचा और उसके पेरेंट्स का भी जो भी सपना होगा बच्चे के बेटरमेंट के लिए होगा, तो वो जो उनकी चिंता थी, आधी चिंता इसने अपनी एक्सरसाइज में ही वो पूरी कर दी। ऐसे और आगे तक वो जाएगा, अभी तो उसने शुरुआत की है, तो वो सारे उसके किस तरह से वो जो अभी उसने सोचना शुरू किया है कि वो ओवर केयरिंग है या उनके किसी भी काम को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो उनका दायित्व है, हमारा नहीं है। तो ऐसे एक ये एक्सरसाइज के तौर पे उसने शुरू किया, जो मुझे लगता है कि यही चीजें को मैं शुरू करवाना चाहता हूँ आपके अंदर, जिन्होंने ये सारी बातें की। दूसरे जैसे विक्रांत ने बात की कि उन्होंने एक 2 रुपए का कॉइन लिया, कॉइन को उसने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके छूने के ढंग से, सबको देखने के ढंग से, और फिर तीसरा कोई कॉइन लिया, दूसरा कोई कॉइन लिया, और जब उसने उस सिक्के को उछाला और उसकी जो साउंड आई, उस साउंड को उसने सुना। अब जो उसने ये एक्सरसाइज की है, इस एक्सरसाइज का, ये साउंड का, उसने कई बार हम सब ने संवाद सुना होगा, और वो इतनी बार सुना होगा वो कान से अभी मैं जैसे ही बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। आप लगेगा पता नहीं कहां कहां, पता नहीं किस फिल्म में सुना है, किस नाटक में सुना है, कैसे सुना है। कि क्या कभी आपने पैसे की खनक सुनी है या पैसे की खनक देखी है कैसी है? तो वो उसने जैसे उछाला, शायद पहली बार पैसे की खनक सुनी, सिंगल कॉइन की। अगर वो थैली में होता तो वो खनक कुछ और होती। तो ये संवाद, ये डायलॉग कब से आप सुनते आ रहे हो, लेकिन इनको आपने महसूस पहली बार किया, ऑब्जर्व पहली बार किया। ऐसे अनेक चीजें हैं जो मेरा मतलब यही है कि उनको आप तक पहुंचाना। जैसे बैंस ने कहा कि उसने जो उसके पास ट्रॉफीज हैं उसने पहली बार देखा, देखने के बाद उस ट्रॉफी के साथ उसने ट्रेवल किया। वो कब मिली, कौन सी जगह थी, क्या था, उसका पूरा का पूरा यात्रा वृत्तांत जो था वो बन गया। कब उसने पहला डायरेक्टर के तौर पे उसे मिली, तो वो कैसे उसने शुरू की होगी, ऐसा उसके अपने आप
हिस्ट्री बन गई और वो अब उसकी ऑब्जर्वेशन में कैद हो गई। उसका जो यात्रा वृत्तांत था, उसकी जो ट्रेवल स्टोरी थी, जैसी कि उसने जितने कम शब्दों में बताई, उससे कई गुना शब्द उसके आसपास घूम गए। ऐसे ही प्रियंका ने जो बताई कि गाड़ियों की उसने आवाज नोटिस की, कार की अलग, बस की अलग, ट्रक की अलग, जितनी भी उसने साउंड सुनी, उस साउंड सुनने के बाद उसने उसकी अपनी ही मेमोरी से एक बात और रिकलेक्ट हुई। रिकलेक्ट क्या हुई कि उसको अपने पापा की बाइक की वॉइस याद आई। वो आवाज जब वो शायद पिछली गली में उसके पापा होते होंगे तो उनको घर पता लग जाता होगा कि पापा की मोटरसाइकिल की आवाज आ गई, पहचान होगी उनको, वो उन्होंने अपनी मेमोरी से उसको याद आ गई। ये चीजों को याद रखना, यही ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आपको तुरंत वो चीजें याद रहें। वो सब चीजें आपके अंदर हैं, आपके अंदर पड़ी हुई चीजों को निकालना, और जिसके लिए कोई जगह नहीं, जिसके लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, आप उसे यहीं पर बैठे बैठे अपने घर पे ऐसा काम कर सकते हैं। और इसी तरह ईशु ने जो 10th क्लास में जब वो कंप्यूटर कर रही थी तो उसे याद आया, उसी का एक्सपीरियंस है, उसी की ऑब्जर्वेशन है। अब उसने नोट की, फ्रेश तो नहीं, कुछ नया काम तो नहीं किया, लेकिन पिछला उसने याद किया। याद करने के बाद उसे डीफ एंड डम की लैंग्वेज जो वो समझ पाती है, अभी उसने एक आधा कोई इशारा करके भी दिखाया, तो वो उस बॉडी लैंग्वेज को समझ सकती है, कर सकती है। ये एक बड़ी बात है। एक उसने नहीं, उसके पास एक और कला है। इसी तरह मुकुल ने कल दर्द की बात की थी, आज उसने एक और आवाज की कि जो आवाज पीछा करती है, या जो आपने इतने साल बाद सुनी उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि वो कर सकते हो आप कि कभी भी अमिताभ का कोई डायलॉग है, उस वॉइस में चाहे कोई भी मिमिक्री करके बोलेगा तो आप एकदम से पहचान जाओगे ये उसकी आवाज है। या जैसे मैं कल आपसे बोल रहा था कि रोहित सरदाना 5 से 6 उसका दंगल जी आज तक आता था और ताल ठोक के आता था, तो वो उसकी आवाज मुझे सुनाई देती थी, जैसे मैं कल बोल रहा था, तो वो आवाज आपका पीछा करती है। सर एक बार रीजॉइन कर लिए प्लीज, इस तो पहला के बंद हो जाए, अपन रीजॉइन कर लिए दोबारा। हाँ, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ सर, हाँ, 5 टाइम मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आई थिंक मैं ये एंड कर देता हूँ। रीजॉइन कर लेते हैं। हाँ, एंड करके वही सर सेम लिंक पे आप क्लिक कर देना दोबारा। अच्छा, दोबारा वापस चले जाए, बंद कर दें इसको। जी जी हाँ जी सर, वो फिर प्रॉपर 1 घंटा हम आराम से बैठ सकते हैं। ओके ओके, आप सब में है यह कला, गॉड गिफ्टेड है। ये कला परमात्मा के द्वारा दी गई हुई कला है, जो सबके बीच में है। सब इंसानों के बीच में नहीं, सब प्राणियों के बीच में है। एक्टिंग की कला, अभिनय की कला। अब 2 चीजें हैं कि ये कला, ये एक्टिंग पढ़ाई से, प्रशिक्षण से, कोर्स से प्राप्त की जा सकती है, सीखा जा सकता है। ये एक प्रश्न चिन्ह है मेरी अपने नजर में। ये एक यक्ष प्रश्न है और उसी तरह स्थिर है। मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना मानना है, पहली बात तो यह है कि दोनों तरीके से इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे पास लोग आते हैं सीखने के लिए, वो उन्होंने किसी भी तरह की एकेडमिक पढ़ाई नहीं की होती थिएटर से रिलेटेड,
उन्होंने किसी तरह का कोई कोर्स नहीं किया होता, कोई किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं किया होता। इसलिए मेरा मेथड ये होता है कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये आप सबके बीच में है। मैं यहाँ सिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी प्रतिभा का अनुमान लगा सकते हो। वहां पर आकर आप रिहर्सल कर सकते हो, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर आप किसी भी विषय के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, जिससे आप अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को एनहांस कर सकते हो। और यही बात प्रैक्टिकल तौर के ऊपर भी सच है। अब ये चीज आप सब में है, विद्यमान है, सब लोगों के पास जब ये है, गॉड गिफ्टेड है, इसको थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है। हम यहां पर आपकी प्रतिभा की पहचान करवाते हैं सिर्फ, कि आप में वह चीज है। मैं एक दो एग्जाम्पल उन प्रसंगों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वह कला, वह अभिनय, वह एक्टिंग, वह प्रतिभा या कला का कोई भी विंग, चाहे वह एक्टिंग है, डिजाइनिंग है, क्राफ्ट है, राइटिंग है, कोई भी जो 64 कलाएं हैं, उसका कोई भी, वह आप में है और ये गॉड गिफ्टेड है। उसका मैं एक एग्जाम्पल देना आप चाहता हूं आपको। अब आप ये देखिए कि एक शुरू से, आप अपने शुरू से या मेरे शुरू से या अपने पेरेंट्स के शुरू से या दुनिया की जब पहला आदमी धरती पे आया होगा, कहीं से भी इसकी कल्पना करनी शुरू करना। जब एक कोई बच्चा, कोई शिशु पैदा होता है, वो पैदा होते ही क्या भाव देता है, क्या एक्सप्रेशन देता है, कि जिसे देखकर डॉक्टर, नर्स बोलता है कि बच्चा अच्छा है, बच्चा स्वस्थ है, बच्चा ठीक है। और अगर वो रिएक्शन ना दे, वो अपना आते ही इस दुनिया में अपना एक्सप्रेशन ना दे, तो उसी समय एक उनकी हाई लेवल मीटिंग डॉक्टरों की बैठ जाएगी, या इसमें क्या कमी है। अब आप वो जो पहला उसका भाव है, उसका पहला एक्सप्रेशन है, उसी ने चिंता लगा दी। अब आप जान गए होंगे कि उसका पहला एक्सप्रेशन क्या है। हम नव रसों की बात करते हैं, उसने पहला कौन सा रस नहीं दिखाया जिसके ऊपर डॉक्टर्स, नर्स की हाई लेवल मीटिंग बैठ गई। वह बच्चा मानो रोया नहीं। रोया नहीं तो इसका मतलब बच्चा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसमें कोई कमी है, ये डीप है, डम्ब है, क्या है। और अगर वो चिल्ला दिया, उसने चिल्लाने के साथ अपना एक्सप्रेशन दे दिया, उस एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाएगा कि बच्चा ठीक है, स्वास्थ्य है,
खुशखबरी बांट दी जाएगी और वह जो भी रस है अपने नव रसों में से एक रस देता है। अब वो रस कौन सा देता है, रुदन का देता है या अद्भुत देता है? रोने से चिल्लाने से नेचुरली बात है कि वो अद्भुत रस देगा कि वो एक गर्भ से जिस जगह से ओपन में आया है तो वो उसको नया लगा, वो देख के घबराया है, डरा है, इसलिए वो चिल्लाया है। अब वो कहां से सीख के आया? इसलिए मैं कहता हूं कि ये गॉड गिफ्टेड होती है कला, जो हम सबके बीच में होती है। अब 2 साल तक वही बालक, वही बच्चा, चाहे जेंडर में वह मेल है फीमेल है, जब तक वह बोलता नहीं, घिसटता होगा, चलता होगा, उसे वो क्या भाव प्रकट करता है? उसे भूख लगी है, क्या एक्सप्रेशन देता है कि उसे दर्द हो रही है? कैसे उसकी मां सब कुछ जान जाती, खाने का दे देती है, कैसे पता लग जाता है? क्या वो करता है कि उसे बाथरूम आया है या उसने बिस्तर गीला कर दिया है? तो ऐसा क्या वो करता है जिससे पता चल जाता है और वो क्या एक्ट करता है? और जो भी वो करता है उसको किसी ने नहीं सिखाया, ये कला उसके बीच में है, इसलिए ये गॉड गिफ्टेड है। अब वो चलना शुरू किया, उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, या जब बोल भी नहीं रहा तो उसके आगे हम कुछ खिलौने टांग देते हैं, कोई हाथी, घोड़ा, झुनझुना, ये वो लाना। अब वो उनको देखता है, देख के ऑब्जर्व करता है, उस ऑब्जर्वेशन के बाद उसे कौन सा टॉय, कौन सा खिलौना पसंद है, वो जब तक उसकी मर्जी का उसे वो खिलौना नहीं मिलेगा वो रोएगा, चिल्लाएगा, पांव पटकेगा, और जब उसे मिल जाएगा तो क्या एक्सप्रेशन देगा खुशी का, सबको लगेगा भी ये मांग रहा था, हमें समझने में गलती हुई। इसी तरह जब वो और बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया, बोलते समय उसने पहले माँ 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 बोला, पापा पापा बोला, ताया बोला, मामा बोला, नाना बोला, ऐसा बोलना शुरू किया उसने। बुआ बोली, चाची बोली, मम्मी बोली, आंटी बोली, सब बोली। लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि ये मेरा ताया है, ये मेरा पापा है। मतलब अब उसे 2 चीजों की पहचान हुई, एक मेल की, एक फीमेल की। फीमेल में उसकी माँ है, मासी है, बुआ है, नानी है, दादी है, चाची है, फूफी है। मेल में उसके पापा है, ताया है, दादा है, नाना है, चाचा है, छोटा भाई है, फलाना है। मेल में कोई सरदार है, कोई हिंदू है, कोई दाढ़ी वाला, कोई मूछ वाला, कोई बिना मूछ के है, कितनी तरह के लोग हैं। लेकिन क्या कभी किसी बच्चे ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद पापा को मम्मी बोला या मम्मी को पापा बोला? मतलब ये कला किसने सिखाई उसे? ये कला उसके बीच में थी, उसकी ऑब्जर्वेशन में थी। जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उसी का हिस्सा थी? जब एक छोटा सा बच्चा इतनी बात कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते?
अब ये कला जब आपके बीच में है तो फिर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो सिखाते हैं उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या भाव है, ये सब चीजें हमारे पास होती हैं। अब मान लो कि आपने 10th क्लास पास की या +2 पास किया, +2 के बाद अब आपने किस दिशा में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, फिर आप वो जो लाइन पकड़ोगे एकेडमिक लाइन, उसके साथ आपको प्रोफेशनली आप स्किल्ड हो जाए। इसी तरह कला सब में है, एक्टिंग सब में है, अभिनय सब में है। अभी जो इशू बात कर रही थी कि जब वो 10th के बाद कंप्यूटर की क्लासेस लेती थी तो तब उसका कुछ परिचय डीफ एंड डम बच्चों से हुआ और उसने उनके एक्सप्रेशन देखे और समझने की कोशिश की। अब कल्पना कीजिए वो डीफ डम बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता और इतने इतने बड़े हो जाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, तो उनके पास क्या पावर है? मतलब अभिनय कर रहे हैं ना, वो मूक अभिनय कर रहे हैं ना, माइम करके बता रहे हैं ना, तो उनको किसी ने सिखाई तो नहीं। जब किसी ने नहीं सिखाई तो इसका मतलब ये गॉड गिफ्टेड चीज हम सबके बीच में विद्यमान है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम कोई कोर्स करते हैं, जब कोई हम एकेडमिक एडमिशन लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिक स्टडी करके हमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं। वो रेफरेंसेस जो लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करके एक बुक शेप में डाली होती है। मान लो कि थिएटर की सबसे बड़ी जो है अभिनय की पुस्तक, रशियन एक एक्टर है स्टेनिस्लवास्की, उसकी अभिनय की परिभाषा चलती है। उस अभिनय की परिभाषा में स्टेनिस्लवास्की अपनी जो है थ्योरी लिखता है, अपने एक्सपीरियंस लिखता है। तो जब हम वो पढ़ते हैं, उन चीजों की पढ़ाई होके मतलब जो उसकी थ्योरी है वो 100% हम में लागू नहीं होती, क्योंकि हमारी परिस्थितियां किस तरह की है, हमने किस परिस्थितियों से सीखना है वो अलग है। तो इसलिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, जिसको आपने पेन डाउन करना है, आपने नोट करना है, जो कि आपके अपने सर्कमस्टांसिस से उठी हुई, जो आपकी एक्टिंग को और ज्यादा इनहांस करेगी। अब मान लो इसी चीजों को लेते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे पास शाम का समय होता है, हम सबने अपने अपने काम से वो समय निकाला होता है, मन में चाह एक्टिंग की है, वो एक्टिंग सीखनी है जो आपके अंदर है, वो कहीं से बाहर से आपने खरीदनी नहीं, बाहर से कहीं लेनी नहीं, किसी को देख के आपने करनी नहीं, और अपने हिसाब से आपने एक नई चीज इजाद करनी। उस इजाद करने वाली चीज का मतलब है कि कुछ आप जो हो रहा है उससे अलग कुछ नया, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, नया कोई अपना अनुभव पेश करना चाहते हो जिससे लोग आपकी पहचान करें या उससे आपका नाम हो, उस क्रिया से आपका नाम। इसलिए इस सब के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो खोज है, हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो चीज है अपने को खोजने की, हमारे पास जो सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्मेल करने की, टच करने की, ये जो पावर्स हमारे पास है, इन पावर्स को हमें इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना है। जब आप इनको इस्तेमाल करोगे, जब आप इनको यूज करोगे
तो आप ये चीज पाओगे कि आपसे बेहतर कोई भी अभिनेता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा भी अगर कोई करता है तो आपको नजर आएगा कि अगर मैं होता तो मैं यहां तक करता। अब इसलिए भी आप अपने शरीर की आंतरिक यात्रा से, अपनी अंतर यात्रा से, अपने अनुभवों से उस रिजल्ट को प्राप्त करो जो आप चाहते हो। और यदि आप इसके ऊपर रोज 5 मिनट 2 मिनट कोई चीजों को देखते हुए, मान लो कि आपने आज किया, तो बाकी सेंसेस, इसका मतलब आपने यूज ही नहीं की 24 घंटे में, कि इनको यूज नहीं किया, हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ सूंघा नहीं, हमने क्या कुछ टेस्ट नहीं किया, क्या हमने कुछ सुना ही नहीं। तो पता चलेगा कि हम अपने को ही दूसरी जगह को ढूंढने जा रहे हैं, वो जगह जिसके पास की उसने किसी ने अपने एक्सपीरियंस लिख के रखे हों। हमने अपने को पढ़ा नहीं, अपने को अनुभव नहीं किया। जब अपने को अनुभव करोगे तो आप और ज्यादा अपने अभिनय में, अपनी उसमें सफल हो जाओगे। अब जैसे कल हमने एक स्पर्श वाली बात की थी, उसका एक संवाद भी था कि वो किस तरह से स्पर्श वाला यूज किया। तो उसके बाद और किसी ने भी कल याद दिलाया, गुरजिंदर ने, कि जब वो चिट्ठी लेता है और वो मेडिकल की पर्ची लेता है, तो वो छूने का प्रोसेस उसने याद दिलाया, वो भी मुझे अच्छा लगा। इसी तरह हम आज जो कोई एक विषय लेते हैं, टेस्ट की बात कर लेते हैं। और कल क्योंकि स्वाद के बारे में ईश्वर बात कर रहा था कि जो मैं स्वाद है उसके बारे में मैं सोच रहा था कि उसका कल जो हमने बात की थी, पहले तो टच की एक्टिंग में उसका क्या रोल है, उसका क्या अभिनय है। तो इसी तरह ईश्वर कल वो कह रहा था कि स्वाद के बीच में वो कैसे होगा, या कुछ इस तरह का उसका थोड़ा सा प्रश्न था। और फिर उसने पानी को छूने वाली बात, गर्म ठंडे वाली बात कही। तो स्वाद की जब हम बात करेंगे, टेस्ट की बात जब हम करते हैं, टेस्ट के बाद किसी जायके की जब बात करेंगे, तो उसका भी उतना ही बड़ा काम है। जायका किस चीज का है, टेस्ट किस चीज का है, स्वाद किस चीज का है, रस स्वादन क्या है, किस चीज का हम रस लेते हैं, इसका भी क्या किसी कल्चर से, किसी संस्कृति से लिंक है। ये रोटी खा लो, नॉन वेज वाला नॉन वेज खाए, वेज वाला वेज खाए। तो आपके मन में भी इसका हो सकता है सवाल हो कि इसका कोई कल्चर से क्या लेना देना। रस स्वादन से देखो कितनी बड़ी कल्चर पता चलती, उस प्रदेश की पूरी दुनिया में कितने कबीले हैं, कितने प्रदेश हैं, कितने देश है, उन सब का खान पान रहन सहन कितना भिन्न, कितना अलग, कितना टेस्ट अलग, कितना जायका अलग। पंजाब की बात करें, अगर हम ना भी पंजाब की बात नहीं करते, चलो मक्की की रोटी और सरसों का साग की बात करेंगे, तो क्या याद आएगा? एकदम कौन सी कल्चर आपके आगे याद है? पंजाब की।
दाल भात की बात करेंगे तो क्या चीज याद आ जाएगी? कहां की कल्चर, किस स्टेट में पहुंच जाओगे आप? बाजरे की रोटी की बात करोगे तो कहां पहुंच जाओ? ज्वार की रोटी की बात करोगे तो कहां पहुंच जाओ? चूरमा बाटी की बात करोगे तो कहां पहुंच जाओ? पिज्जा की बात करोगे, बर्गर की बात करोगे, जो भी खाने वाली जितनी भी चीजें हैं जहां जहां की है, उन सब का अपना अपना रस स्वादन, अपना अपना टेस्ट। वो टेस्ट तब है जब आपको उसका पता है, जब आपके पास उसका अवलोकन किया हुआ है, जब आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, उसकी ऑब्जर्वेशन पता है। अगर नहीं पता तो ठीक है, मीठा तो मीठा, नमकीन है तो नमकीन है, बाकी कुछ है नहीं। जब हम इसको खोजने की कोशिश करेंगे, पहली बात, आपको खाने का आनंद आ जाएगा। उसे आप चबा चबा कर उसका रस स्वादन करोगे, उसका रस लोगे, उसे खाओगे। आपको पता लगेगा कि अगले हिस्से पे छूने से क्या टेस्ट है, जीभ के मिडल में छूने से क्या है, तलुए के साथ छूने से क्या टेस्ट आ रहा है, क्या रस आ रहा है। एक कोई कड़वी दवाई है, अगर आप आगे से खाते हो तो पानी लेने तक हो सकता है कि आप वॉमिट कर दें। लेकिन जब उसी को आगे मुंह खोल के तलुए के ऊपर रखोगे, जीभ की मध्य जीभ के पीछे रखोगे, तो एकदम वो आपके अंदर चले जाएगी और ना कड़वापन का स्वाद आएगा आपको, उसका ऐसा भी नहीं होगा। ये रस स्वादन एक हमारा हिस्सा है, अभिनय का भी हिस्सा होता है। अब मान लो कि मैं चाय पी रहा हूं, उस चाय का मुझे स्वाद ही ना आए, या मैं उसको टेस्ट करता हूं तो क्या आता है? आप यकीन मानेंगे, आपको मालूम होगा कि जो चाय बागान के खेत होते हैं, उनके बीच में एक स्पेशल एक्सपर्ट होता है जो चाय का टेस्ट करके उसकी गुणवत्ता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी ग्रेडिंग करता है। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो सिर्फ टेस्ट करते हैं। कोई भी आपने खाना बनाया, उसके क्या मसाले पड़े हैं, कितना पड़ा है, अदरक है, बिना लहसुन के है, वो सब बता देते हैं टेस्ट करने से। क्या हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है? या खाना तो खाते ही है ना, चाहे पिज्जा खाते हो, चाहे बर्गर खाते हो, खाते तो हो। उस टेस्ट को पहचानने की कोशिश की। जब यह सब चीजों को इकट्ठा करके खाने में आनंद आता है, आप देखोगे, जब आपको फिर ये महसूस होगा तो आप कभी अकेली एक सब्जी से खाओगे, उस सब्जी का आनंद लोगे, उसका पता चलेगा ये क्या टेस्ट है। ये थोड़ी थोड़ी इसकी ग्राफिक्स हैं, आप खुद जैसे शुरू कर दिया आप लोगों ने ऑब्जर्व करना, तो ऐसा करोगे तो ये कला भी आप में आएगी। भरपूर आप ही में है, किसी और में तो है नहीं। अब इसका अभिनय में किस तरह से इस्तेमाल होता है? मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर संध्या छाया का नाम लेता हूं। संध्या छाया में एक जगह गुजिया का सीन है। वह नाटक में नहीं है, वह स्क्रिप्ट में नहीं है, भी गुजिया आएगा खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें स्क्रिप्ट में है, गुजिया का है, भी गुजिया आती है, डायलॉग संवाद। उसका अब टेस्ट, उसका खाना, उसको छेड़ना, उसको टच करने का
ये कितना बड़ा सीन बन जाता है सर उसमें से। सर रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, 10 मिनट हाँ। रह गए हैं, तो हम दोबारा रिजॉइन कर लें क्योंकि 10 मिनट तक करते रहें बात सर। अच्छा, तो मैं ऐसे करता हूँ ना, खत्म करने की कोशिश करूं। नहीं सर, हम दोबारा टाइम हो ज्वाइन गया कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हमें दोबारा 40 फिर मिनट। 10 मिनट तक चलते रहने देते, जैसे खत्म होती है फिर लॉग इन कर लेते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, यस ऐसे कर लें। यस सर, 10 हैं? मिनट हैं सर हमारे। तो बात कर रहा था कि संध्या छाया में जो हमने देखा, उसमें एक गुजिया का सीन है, गुजिया उठाना, वो पकड़ना। अब दूसरा व्यक्ति खा रहा है, उसका रस स्वादन कर रहा है, और दूसरा बंदा उसे दे रहा है, और लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। दर्शक तक वो बात पहुंच रही है, चाहे वो अपने आंखों से देखने की है, उसके टेस्ट की है, उसको करने की, जो टेस्ट है उसका, जो स्वाद है। जब अभिनेता, कोई एक्टर दर्शकों के मुंह में वो चीज डाल दे, पानी ला दे, उसका रस स्वादन करवा दे, तो मान लो आपका अभिनय सफल हो गया। अब वो तब होगा जब आपने उसका रस स्वादन इतने सूक्ष्म ढंग से, इतने माइक्रो ढंग से उसका विश्लेषण किया है, उसकी ऑब्जर्वेशन की है, वो तभी संभव हो पाएगा ना। जैसे 7 बगाने में वो एक खाने का है भी, अगर नहीं है तो 2 मनिया हो, बापू ने पकाते हैं, इसे देख ला खान लग रहा है। या वो बोलता है कि आज हम भी चेयरमैन की तरह खाना खाएंगे। ये डाइनिंग टेबल लगाता है, बेंच उठाता है, उसको बोलता ले तू प्याज छिल, गंडा छिल, नाना कर। अब क्या वो बिना फीलिंग के, बिना उसका रस स्वादन किए हुए, बिना उसका एक्सपीरियंस किए हुए वो एक्सप्रेशन आएगा? माइम आ जाएगी। खाया क्या खाया नहीं पता, कुछ सिर्फ माइम हो जाए। तो उस चीज को जो हम व्यक्त कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन, उसका रस स्वादन वहां तक पहुंचाना। या लोहा कुट में जब वो खाना डालती है, वो शराब पी रहा है, शराब पीते पीते उसका अनुभव इतना है कि वो शराबी हो गया, खाने का टेस्ट नहीं आया, और वो दुखी है इस बात। ये खाने के एक्सप्रेशन है, उस खाने के जिसको आप रोज खाते हो, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उस टेस्ट को हमने अनुभव नहीं किया, उसको महसूस नहीं किया, उसको हम एक्सप्रेशन में अपने तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ये है कि इस चीज को जब आप देखोगे, ये आपकी रूटीन का काम है। दिन में पता नहीं, हम लोग 3 टाइम भोजन तो करते ही हैं, उसके बीच बीच में, इंटरवल्स के बीच में क्या क्या खाते हैं हमें नहीं पता। इससे एक तो आपको पता चलेगा, दूसरा आपको उसका रस आएगा जो आप खा रहे हो, आपको पहचान होगी। हम कई बार बोल देते हैं भी, इसे तो ये नहीं पता है कि इसने कल क्या खाया है, या मुझे तो यार ये नहीं याद रहता मैंने सुबह क्या खाया। इतना बड़ा काम एक एक्टर के लिए, जो दुनिया के लिए जीरो है, वो आपके लिए मेन काम। जब इस चीज को आप महसूस करना शुरू करो हर पल, इसीलिए मैंने ये, खत्म हो गया क्या टाइम? हेलो? नहीं सर, चल रही है 5 मिनट है सर, 5 मिनट है, 5 मिनट। अच्छा 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 अच्छा। तो इसलिए मैं भी अब इस बात को खत्म करना शुरू करता हूं, ताकि फिर अगली उसमें हम उसमें जो नाटक की डिस्कशन के लिए आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं ये एक्सरसाइज आपके लिए शुरू करवा रहा हूं, उसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए,
कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई विशेष नहीं चाहिए, आपकी अपनी उपस्थिति चाहिए, आप चाहिए, अपने आप में चाहिए, अपनी अंतर यात्रा में जाना, आपको अपने अंदर घुसना है, अपनी सभी सोई हुई पावर्स हैं उनको रीजनरेट करना है, उनको पुनर्जागृत करना है। ये सब चीजें आपके काम आएगी। और एक और इस एक्सरसाइज के साथ मेरा आप सबसे ये है कि आज एक चीज और जरूर करना कि आपने अब तक जिंदगी का जितना अंश है क्या खोया है। दूसरा 3 कॉलम बना लेना, एक ही पेज के ऊपर, चाहे एक पे लिख देना खोया, सेंटर में लिख देना पाया, दूसरे कोने में लिख देना क्या पाना है। जब ये तीनों चीजें लिख लोगे, ये जरूरी नहीं कि एक दिन में आप लिख लो इसको, धीरे धीरे सोचना, प्रेशर मत डालना, ये वैसे लिखने के लिए लिख लो। ये आपको आपका अपना टारगेट देंगे। ये शब्द 3 लिख लोगे, पहला खोया, पाया, क्या पाना है, आपको मंजिल राह की तरफ ले जाना शुरू कर देगा। और उसका सहायक ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, ये सहायक होगा, ये सिद्ध करेगा आपकी जर्नी। अब बबशील दोबारा रीज्वाइन कर लिए, मैं हुने थे पॉज ले लिया हैगा। यस सर, आई थिंक दोबारा रीजॉइन कर लेते हैं क्योंकि दोबारा ज्वाइन कर ले। हाँ, मतलब सभी वो लिंक से ना रीजॉइन कर लेना प्लीज। मैं ये एंड कर रहा हूँ मीटिंग। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। सर आ गए हैं सब, दोबारा आ गए। हाँ जी सर। हाँ, सो शुरू करें? यस सर, यस सर। तो बाकी म्यूट कर लो। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। हाँ शुरू करो। मैं भविष्य यस सर, यस सर। हाँ, तो चलो, मैंने मेन आपको जो मेरा प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर आप अपनी भी फीडबैक देते रहना, अपने भी एक्सपीरियंस साथ साथ जोड़ते रहना। कल अब नाटक के बारे में ही बात करेंगे, जो आज आपने नाटक सोचा है उसके डिस्कशन के बारे में। उससे पहले उस नाटक के डिस्कशन के बारे में करने से पहले कुछ कल बातें हुई थी कोर्ट मार्शल के बारे में। मुझे लगता है वो 1-2 बातें रह गई थी। जैसे कल कोर्ट मार्शल की बात के बारे में एक हुआ था कि किसी एक्टर की यूनिफॉर्म फटी हुई है, उसके लिए तो मैंने बोल दिया था कि चलो नहीं, वो सिल जाएगी, बन भी जाएगी। एक शू पॉलिश के लिए किसी ने ये किया था कि शू पॉलिश करते हैं, पहले हम सब लोग, एक व्यक्ति की ड्यूटी होती थी शू पॉलिश करने की, यूनिफॉर्म प्रेस करने की, उस कमी आई। तीसरा था भी कोऑर्डिनेशन की कमी की। तीसरा था, वर्षा ने ये किया था, डायलॉग डिलीवरी के बारे में था कि डायलॉग डिलीवरी इस तरह से नहीं होती, या भी उसका भी हमने कहा था कि वो कई बार पिच जो है उस तरह की आर्मी वालों की इतनी हाई नहीं होती जितनी हम दिखा देते हैं, जितना एक्सरेट करवा देते हैं या गार्ड का या ऐसा। लेकिन वो हम बताया था कि जब हम अंतिम व्यक्ति तक उस संवाद को पहुंचाना है तो वो इतना अंडरटोन नहीं हो सकता। अब ये था कि हमने जब ये नाटक शुरू किया था कोर्ट मार्शल का स्ट्रक्चर कैसा हो, तो जो शुरू के प्ले थे उसमें सेट भी लगा था, इसका कटघरा वगैरह ये था।
तो लेकिन फिर हमने इसका स्ट्रक्चर इसलिए चेंज किया कि हमारा ये था कि एक तो इसका कंटेंट जो था, कंटेंट एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है हजारों सालों से इस देश में, जो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, जाति प्रथा का कितने पंथ, कितने धर्म इसमें इसी चीज को खत्म करने के लिए नए उन्होंने प्रयोग किए, लेकिन ये बीमारी रही। तो हमें ये लगा था कि इसका इस कंटेंट को लेकर हम साथ चले थे। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हमने फिर इसका बनाया था, तो जो पंजाब कला भवन में जहां आपने शो किया था, उसका ये छोटा सा एक छड़ा सा होता था, पूरा स्टेज नहीं होता था। जो 3 जजेस हैं वो ऑडियंस की तरफ नहीं बैठते थे, वो इस तरह से वो जो साइड का रेलिंग है उसके साथ पीठ करके ऑडियंस जो है वो उनकी फेस उनकी तरफ होते थे, दूसरी तरफ, क्योंकि इकट्ठे इतने बैठ ही नहीं सकते थे 10 लोग सामने करके, 4 वैसे करके, तो 3-3 करके सामने जजेस और एक रामचंद्र। तो उस तरह से वो छोटी स्टेज के लिए बनाया था ताकि हम कहीं भी जाएं तो उस तरह के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। और इसीलिए सेट नहीं था रेडी टू मूव हो, ये कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं इजी टू कैरी वाला प्रोसेस के साथ। और मेन इसका मकसद ये था कि हम दर्शकों तक पहुंचे, दर्शक इकट्ठा करें। जो उस समय थिएटर में दर्शक कम हो गया था उसकी पूर्ति के लिए, जिसमें हम लगभग कामयाब हुए, उसकी जो ऑडियंस की लिस्ट बनी वो हमारे पास है। यहीं से वो चाहे टैगोर में गई, कहीं गई, वही दर्शकों की गिनती हमारी अभी उतनी बड़ी दोबारा अपडेट नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। खैर ये अलग बात है। फिर एक आया था कि यूनिफॉर्म के बैचेस वगैरह जो है वो अलग अलग तरह से या ठीक नहीं थे, उसके बारे में वो हम गलत पहले से ही रखते थे। फिर बाद में हमने गलत लगाने शुरू कर दिए थे थोड़े थोड़े टेक्निकली तौर के ऊपर, ताकि इस यूनिफॉर्म का मिसयूज ना हो। एक बार हम दिल्ली शो करने के लिए गए थे, दिल्ली प्यारे लाल ओडी में था, तो ठहरे पहाड़गंज थे, तो सारे आर्टिस्ट वहीं से यूनिफॉर्म में आगे कुछ पैदल शॉपिंग के लिए चले गए। तो रास्ते में कैंट एरिया में कुछ आर्मी वाले थे, तो वो देख के यूनिफॉर्म रुक जाते थे, सल्यूट करते थे। तो इसलिए उस यूनिफॉर्म का मिसयूज ना हो, तो इसलिए ये कमियां हम रखते हैं, ताकि हमें पता है कि आर्मी का बैकड्रॉप है, तो अगर आपने सिर्फ ग्रीन वर्दी भी डाली होगी तो इट मीन्स क्लियर है कि ये आर्मी वालों के ऊपर ये जो है नाटक हो रहा है। और इसका 1-2 और बड़े अच्छे किस्से मुझे याद आते हैं इसी के संदर्भ में, यूनिफॉर्म के पहले तो संदर्भ में, कि एक बार हम जब कला भवन में ये नाटक कर रहे थे, तो एक दिन ये चंडी एयरफोर्स के पास एन एरिया है, जो अपना एयरपोर्ट वाला है, वो एन एरिया उसको बोलते हैं आर्मी वालों का जो है। उस एन एरिया से कुछ लोग आर्मी वाले नाटक देखने आ गए। उन दिनों में 2000 में हम इसको रेगुलर डेली शो इसका शाम को करते थे 6:30 बजे। तो 6 बजे के करीब लोग सब आ जाते थे, 5:30 हम आर्टिस्ट इकट्ठा हो जाते थे, अपनी अपनी यूनिफॉर्म डालते थे। तो उसी समय उस दिन गर्मियों के दिन थे, अंधेरी आई, तूफान आया, लाइट गुल होगी, बहुत तेज बरसात शुरू हो। जो बरसात का टाइम था वो नाटक होने का टाइम था, तो हमें लगा कि नाटक नहीं होगा, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर्स आए हुए थे, तो वो वेट कर रहे थे, 15 के लोग होंगे वो। तो हमें नाटक करने का जुनून था, इच्छा थी, तो हमने कहा कि अगर हो तो लाइट का तो अब पता नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो हम बैठे, आ गई तो देखेंगे। तो कुछ एक लोग और बैठे थे, तो उन्होंने कहा ऐसे ही शुरू कर दो आप, अब जा तो सकते नहीं बाहर बारिश में। तो जहां आजकल दर्शन रहता वहां पर जगमेल रहता था चौकीदार, उसने हमें 2 मोमबत्तियां दे दी, कैंडल दी, कैंडल जलाई, और
उस कैंडल लाइट में आप यकीन मानेंगे पूरा का पूरा नाटक हुआ, लाइट नहीं है। अब वो इतना क्लोज सर्किट नाटक था, इतना इंटीमेट थिएटर था वो, जिसमें दर्शक के श्वासों की आवाज सुनाई देती थी, कलाकार के श्वासों की आवाज सुनाई देती थी उस कैंडल लाइट, उस शहर में जहां कैंडल लाइट डिनर तो होता हो, कैंडल लाइट थिएटर शायद पहला था। जब शुरू में थिएटर लाइटें नहीं थी तो कबूकी थिएटर बोलते हैं कि उसमें मशालें जलाई जाती थी, ये उससे भी बेहतर था, ऐसा अनुभव था, ऐसी ऑब्जर्वेशन है मेरी। और अगले दिन एक पत्रकार भी आ चुका था, उसने अगले दिन ये न्यूज भी लगाई। फिर उस आर्मी वालों ने हमें ये कहा कि आप, हमने उनको बताया कि, उन्होंने कहा फिर आप सब की जो है यूनिफॉर्म में कोई कमी रख दो, आपका आइडिया अच्छा है कि कोई इसको मिसयूज ना करे। फिर उन्होंने एन एरिया में शो करवाए, हिसार कैंटोनमेंट एरिया में 2 दिन जो है जवानों के लिए, 1 दिन अफसरों के लिए वहां पर ये नाटक हुआ। तब भी हमें डर लगता था कि ये कहीं ऑफिसर्स के अगेंस्ट तो नहीं जाता, लेकिन वहां भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये ऐसा अनुभव है जो हमेशा हमें याद रहता है। एक इसी तरह का अनुभव था जब रोज हम करते थे नाटक, तो एक दिन हरिजन समाज के लोग इकट्ठे होके आगे, भाई आप ये नाटक बंद करो, आप हमारे समाज के बारे में गलत बताते हो। हमने उनसे बड़ा रिक्वेस्ट की कि आप नाटक देखो, और फिर जहां आपको लगेगा बुरा लगेगा तो हम बंद कर देंगे। कोई ऐसे कहते हम क्यों देखें, हमारे लोगों ने हमें बताया ये नाटक गलत है, इस नाटक को आप बंद करो। वो लड़ने के ऊपर पूरा उतारू थे। पंजाब कला भवन की स्थान था, तो जब नहीं समझ पाए तो सेठी जी वगैरह भी, तो हम भी सोच रहे थे कि कई बार क्या होता है कि आप प्रण कर लेते हो, प्रतिज्ञा ले लेते हो और उसमें फंस जाते हो। जैसे इतिहास में अगर आप देखो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली और वो इतनी देर शैया पे लेटा रहा। ऐसे ही हमने प्रतिज्ञा ले ली थी कि 1 साल लगातार करेंगे, और रोज हम इकट्ठे होते थे, कितनी मुसीबतों का सामना करते थे, उस प्रतिज्ञा से हम बंधे हुए थे, फंसे हुए थे। हमें लगा भी अब प्रतिज्ञा से छूटने का ये बड़ा अच्छा मौका मिल गया। हमने उनको कहा, भैया आप हमें नाटक करने दो, आप नाटक देखो, जहां आपको अच्छा ना लगे आप एक पत्थर उठाकर किसी शीशे पे मार देना और हम भाग जाएंगे, नाटक बंद हो जाएगा। आप नाटक बंद करवाना चाहते हो, नाटक बंद हो जाएगा। हम बंद करना चाहते हैं, हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। वो कहते, वाह जी, कल को केस हमारे अगेंस्ट बन जाएगा, हम शीशा क्यों तोड़े, आप नाटक सीधा बंद करो। हमने कहा कोई सूत्र तो हमें दे दो कि हम किस तरह से इसको छोड़कर भाग जाएं। कल को हमें लोग बोलेंगे भी पता 1 साल के इन्होंने किए थे और 2 महीने में बस होगी। तो हमें थोड़ा सा वो दे दो, क्योंकि हम भी जुनूनी थे। तो एक व्यक्ति उनमें कोई समझदार था, तो उसने कहा चलो देखते हैं, नहीं तो उसी समय। मैंने कहा आप हल्ला ही कर दोगे तब भी बंद कर देंगे, हम उसी समय में बंद कर देंगे। तो उन्होंने नाटक देखा, नाटक देखने के बाद एप्रिशिएट किया, ज्यादा देर खड़े नहीं हुए, चले गए, क्योंकि उससे पहले वो सुबह बहुत गाली गलौज जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो अगले दिन वो लोग आए, आके कहते, भी शर्मा जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इस कला के माध्यम से ये कर रहे हो, हमारे लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन एक इसमें डायलॉग बदलो।
हमने कहा क्या भी, उस समय जो बीडी कपूर जो अशोक राणा करता था तो उसका रंग सांवला था, और मनीष कपूर या राजीव मेहता शायद, या वंश भारद्वाज, रॉकी, ये रामचंद्र, इनमें से कोई एक रामचंद्र था, तो इनका रंग साफ था। तो कहते भी रामचंद्र अब वो कपूर को बोलेगा भी उसका रंग काला है, भी तेरी माँ जरूर किसी चूड़े चमार के पास सोई होगी तभी तेरा रंग काला है। ऐसा कुछ उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, क्योंकि वो उसको बोलता है भी चिट्टे चूड़े तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। तो इसका उन्होंने ये कहा कि इसका प्रति उत्तर इस तरह से वो देगा। तो एक नई समस्या पैदा कर दी उसने भी, अगर इसको बोलेंगे भी नहीं तो ये फिर कहेगा भी तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ये भी बंद करो। तो हमने कहा स्वदेश दीपक की स्क्रिप्ट हमारे पास थी, कोर्ट मार्शल, वो हमने पकड़ा दी, एड्रेस हमने दे दिया उन काम वाले का, भाई साहब इसको तो राइटर ही बदल सकता है, आप उनसे लिखवा लो, चेंज कर देंगे, वो हमें फोन पे बता देंगे, हम कल से ऐड कर देंगे। तो उनको बात समझ आई, वो स्क्रिप्ट लेके चले गए, एड्रेस लेके चले गए। तो दोबारा उसके बाद वो आए नहीं। नेचुरली बात तो जाहिर है कि वो वहां गए नहीं होंगे, या गए होंगे तो पता नहीं क्या जवाब मिला होगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन दोबारा उन्होंने कभी तंग नहीं किया नहीं। लेकिन कई साल 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के ऊपर कई साल लगातार 37 सेक्टर के अंबेडकर भवन में वही समाज के द्वारा नाटक होता रहा, और वहां हमें इतना एप्रिसिएशन मिलता था हर साल, मतलब लगातार, मुझे लगता है 4-5 साल को लगातार हमने वहां किया। तो ये नाटक की विशेषता भी है। तो अब मुझे लगता है कि हमें अगले नाटक के बारे में, जो कल नाटक था कोर्ट मार्शल की हो चुकी बात, अब आज हमने चर्चा शुरू करनी है सत बगाने नाटक की। तो मैं भवशील जी से फिर निवेदन करूंगा कि सत बगाना नाटक के लिए जो कोई भी आपके पास फीडबैक है, कहाँ से शुरू करना है, तो भवशील जी एक बार फिर सत बगाने के लिए और फेस्टिवल के लिए। कल शरणजीत जी नहीं थे मीटिंग में, मुझे लगता है कल हमने ये खास बात की थी कि जिन लोगों के कारण ये फेस्टिवल हुआ, उसमें शरणजीत सिंह जी के दौड़ भाग के कारण, उस परमिशन के कारण, अगर आप परमिशन ना लेते तो शायद हमारा जो पिछला साल था वो 0 ईयर निकल जाता। आपके कारण, आपकी मेहनत के कारण वह फेस्टिवल हुआ और फेस्टिवल सफल हो गया। इसका श्रेय शरणजीत जी को जाता है। तो एक बार अपने अपने घर से क्लैप करते हुए शरणजीत जी को ताड़ियों की आवाज दे दे। सर मैं थैंक यू वेरी मच, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं समझदा कि जो मैं किया वो एक TFT का सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज सीगा ते मैं तां कीता। सैकेंडली शरणजीत जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ विक्रांत जी उन्होंने दिनों दे विच थोड़ा बिजी सीगे ते मैं तां रिटायर्ड आदमी फ्री सीगा ते मैनू कोई दिक्कत नहीं हुई। ते मैं सॉरी फील करांगा कि मैं 2 दिन लेट ज्वाइन किया। कोई मेरी एक शूटिंग सीगी सीरियल दी। हाँ नहीं हो सी ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ। हाँ जी हाँ जी ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ नहीं मैं नहीं समझदा कि चलो जरूरी है, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਏ। ਕਾਲੇ ਸ਼ੂ एक्चुअली देखो काले शूज होंगे आ पॉलिश होने चाहिए, क्योंकि नहीं, कोई मेरे भी वाले ऑफिसर polish है बिना पॉलिश शू नहीं आंदा हैगा। लेकिन नहीं, ਅਸੀਂ मेरे ਹੁਣ वाले ਅੱਗੇ सीगे तो- ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ, ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰ- ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਸ਼, ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਨਾ। ਜੁੱਤਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ, ਜੀ, ਵੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ भवशील जी। यस सर, सात बगाने प्ले से पहले वो तो बैंस पाजी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले सर दीपक पाजी हैं, दीपक अरोड़ा पाजी, उन्होंने कुछ अपने थॉट्स शेयर करने थे। जिन लोगों को हाँ, नहीं हाँ। पता दीपक सर के बारे में, दीपक सर बहुत पुराने TFT के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे हैं, और ट्राई सिटी के जो भी प्रेस है और जो भी मतलब TFT का सारा जो प्रेस का काम होता है उसमें दीपक पाजी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और दीपक पाजी आप बोल। नमस्कार जी सबको, मेरी आवाज आ रही है? बख्शील भाई, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपका, बड़ी अच्छी तरह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, प्रणाम जी। और सब साथियों को नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल हमने जो शब्द एक ऑब्जर्व किया था स्वाद, और उस पर आज चर्चा की, और एक शब्द और है जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने भी शब्दों से कुछ बातें करने की कल कोशिश की, तो वो शब्द था आवाज। मतलब आवाज एक ऐसा शब्द है, जैसे ईश्वर जी ने नोटिस किया कि स्वाद शब्द में बहुत कम काम हुए, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो शब्द आवाज है उस पर बहुत ज्यादा काम हो चुका है। जैसे मतलब फिर भी अगर उसमें कुछ काम करने की गुंजाइश हो तो अगर हो सके तो, जैसे शब्द जो है उसको मतलब एक शेर है कि मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए। एक ये अलग थॉट है कि मतलब आवाज को पर्दा बता दिया, और दूसरा कि मेरी आवाज ही पहचान है। फिर आवाजें आती हैं, आवाजें रुलाती हैं, आवाजें हंसाती हैं। मतलब अगर किसी प्रेमी ने प्रेमिका को बोलना हो कि हाँ मतलब आवाज की उसकी तुलना कोयल से कर देते हैं। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि आवाज तुम्हारी बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो आवाज एक ऐसा शब्द है कि जिसपे बहुत ज्यादा काम हो चुका है। एक मेरी ऑब्जर्वेशन सर सिर्फ इतनी सी ये थी। और दूसरी बात ये थी कि जैसे हम कई बार सवालों के जवाब बनाते हैं, तो एक एक्सरसाइज ऐसी की जाए कि सवालों के जवाब की बजाय जवाबों के सवाल बनाए जाए, तो वो एक्सरसाइज एक अच्छी हो सकती है सबके लिए। मेरा ये मानना है सर, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत गलत भी हो सकता है और थोड़ा सा ठीक भी हो सकता है। और एक सर, जैसे हम कोई शब्द को ढूंढने की एक्सरसाइज करते हैं, तो हम 2 लाइनें जैसे पढ़े, तो उसमें से जैसे जो बड़े पॉपुलर शब्द हैं उनको हटा के अगर जो कम पॉपुलर शब्द हैं उनका इस्तेमाल करके उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जैसे एक मैंने शेर नोट किया था कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। तो इसमें रफ्तार, अंदाज और बदलेंगे ये शब्द कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जो पुराना शब्द है वो अनकॉमन है, और हम इसको फिर एक्सप्लोर करें
तो इस तरीके की एक्सरसाइज अगर करने की कोशिश करें। और जैसे आपने अभी एक एक्सरसाइज दी कि खोया पाया और क्या पाना है, ये अगर हम जैसे ये तो हम बाद में सोच के करेंगे कि इसका समय, और एक स्पॉन्टेनियस होने के लिए कुछ एक्सरसाइज ऐसी दी जाए कि ऑन द स्पॉट कोई ऐसा सिचुएशन दे दी जाए जिसपे हम किसी सेशन में ऐसे डिस्कशन कर सकें। तो मेरे सर इतने से विचार थे और बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने अच्छा ये कहा भी, और मैं सब लोगों को ये बता भी देता हूँ, ये दीपक अपना बहुत पुराना साथी है। और जब ये शुरू में दीपक जी आए तो इन्होंने भी एक ऐसी ही एक्सरसाइज हमने की थी, राइटिंग वर्कशॉप की। उन दिनों देवेंद्र राज अंकुर जी थे, संजय उपाध्याय बिहार वाले, और कौन था, तो वो वर्कशॉप हमने वहाँ उस समय पिंजौर में की थी। तो उसमें भी साक्षी थे अपना दीपक जी, और दीपक जी ने फिर यहीं अपनी 23 की जो जहाँ एंटर करते हो सीढ़ियों पे बैठ के एक पहली स्टोरी, जो मुझे लगता है कि शायद वो पहली होगी दीपक की, आलू का परोठा नाम से लिखी थी। और फिर उसके बाद इनका जो है जिसे हम कहते हैं कि एक प्रैक्टिस ऐसी शुरू हुई, उसमें ये इतने निपुण हुए कि इनको पत्रकारिता की नौकरी मिली। डेस्क के ऊपर ये सब एडिटर का काम करने लग पड़े। फिर इनको डेस्क की नौकरी छोड़ के इन्होंने कहा कि मैं क्रिएटिव काम करना चाहता हूं, तो फोटोग्राफी से जुड़े, और फोटोग्राफर के तौर पे ऊपर आज जो है बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। और उनकी जो भी आप फोटो देखते हो, एक अखबार में छपने वाली नहीं होती, एक उसकी एग्जीबिशन के लायक होती है। ऐसा ये काम करते हैं अपने उससे, तो हमें इनका बड़ा सहयोग रहता है, हमारे लिए बड़ी प्रेरणा वाली बात रहती है। तो जो अभी इन्होंने जो सुझाव भी दिए आवाज के बारे में भी, और दूसरा एक वर्कशॉप के बारे में, क्या खोया पाया वाली की इस तरह की, तो वो जब 23 में आएंगे वहां तो एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्चुअल के ऊपर हम कोई ऐसा काम करें। वर्चुअल के ऊपर ये काम, मान लो कि किसी को समय दे दिया तो उसने 10 मिनट लिया, 5 मिनट लिया, तो इतने में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये होमवर्क करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। जब वहां पे आएंगे प्रैक्टिकल फील्ड में तो सब में कुछ ना कुछ नयापन होगा। हम सब लोग घरों में बैठे हुए थके नहीं होंगे, वहां फिर हम फ्रेश नजर आएंगे, यही मंतव्य है अभी तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ कि जैसे क्या कहते हैं, ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, हम अपने घर में बैठे भी, जैसे कई लोगों ने सॉन्ग्स वगैरह भी किए और मतलब शॉर्ट फिल्म्स करी, उस तरीके का हम अगर कुछ कर पाए, हमारी क्रिएटिविटी को मतलब जिस तरीके से हम बात तो कर रहे हैं, और ये जो क्रिएटिव एक्सरसाइजेज चल रही हैं बहुत अच्छी है सर, लेकिन अगर उसका कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट लोगों को भी दिख पाए, जैसे हम अपना कुछ कोई लिखे, कंटेंट की सर कमी हर किसी को रहती है जब लिखने लगते हैं तो, लेकिन अगर हमारी इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो हमारे पास कंटेंट बड़ा अच्छा आ जाएगा और हम उसको विजुअलाइज कर लें, और अगर उसको कहीं शूट करने की जरूरत है तो मैं अवेलेबल रहूंगा ही, और अगर ऐसा कुछ शॉर्ट फिल्म जो स्तर पे कुछ निकाला जा सके तो ये हमारी थोड़ी सी, अगर इस दिशा में प्रयास हो तो सर अच्छा रहेगा सर। ठीक है दीपक जी, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अभी जैसे ये बाजवा और ये भवशील जी इस ग्रुप में डाल रहे हैं जो ये शॉर्ट फिल्म इन्होंने बना रहे हैं, कुछ ऐसा तो वो तो लॉकडाउन बहुत के दौरान ही बना रहे हैं, तो इसको भी हम एक दिन चर्चा में रख लेंगे। आपका ये सुझाव हम मान लेते हैं, और उसमें फिर जो कंटेंट वाली बात कर रहे हो आप, तो वो इनकी स्टोरी में मुझे मिसिंग भी लगता है, तो वो बात भी कर लेंगे। है जो आपने सुझाव दिया, इसको अपनाते हैं, इसको रख लेते हैं बीच वाले दिनों में। ठीक है, और कोई? यस सर, आई थिंक अब सत बगाने पे डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तो बैंसपा जी आप शुरू कर दो। हम 7:30 तक करते हैं इसको, है ना? हाँ जी सर, आई थिंक अभी तो टाइम फिर इसी जहां छोड़ा इससे आगे कल शुरू कर लेंगे 5:30 बजे। यस सर, ठीक है सर। है यस ठीक सर। है। हाँ जी सर,
ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਕਾਸਟ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾਟਕ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਔਨ ਪਲੇ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਰਿਹਰਸਲਸ ਦੀ। ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਫੁੱਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ हैं, दस सकते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस दस सकते हैं। कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो दस सकते हैं, कोई कमी लगी हो दस सकते हैं, या कोई किसी तरह का भी अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं। सर मैनू और हाथ खड़ा कर दिया करो ताकि थोड़ा जा पता लग जाए करे। मैनू एक्चुअली कास्ट बारे नहीं पता कौन कास्ट में है, तो कोई अगर हाथ खड़ा कर दे तो पता लग सकता है, नहीं हाँ तो जी सर जैकी पाजी हैं वो बोलना चाहते हैं, तो जो भी कास्ट में है तो वो बोल सकते हैं। हाँ ना, बिना कास्ट वाला भी अगर कोई ऑडियंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, लेकिन हाथ खड़ा कर दो ताकि पता लग जाए, इस ना टाइम वेस्ट होवे। यस सर, यस सर। जैकी पाजी आप बोल दो अनम्यूट करके। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो मैं प्ले के बारे में बताना था कि जो हमारा सतबिगा ने अब की बार जो प्ले किया, मतलब पता नहीं वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था या कुछ ऐसा था, क्योंकि रिहर्सल में मैं प्रॉपर नहीं दे पाया इसके लिए, क्योंकि जॉब का थोड़ा सा था मेरा। और दूसरा ये था कि जो मैंने करैक्टर तैयार किया था इस प्ले के लिए, जैसे एक बीच में मैंने हंसने वाला थोड़ा सा ऐड किया, कुछ अलग से, मतलब तो वो जो मेरे पहले 2 प्ले हुए उसमें बड़ा मतलब अच्छा ऑडियंस का मतलब साथ मिला वो जो हंसने वाले सीन में। लेकिन अब की बार मुझे मतलब 2-3 हंसी जब मैंने हंसना शुरू किया तो उसमें मुझे पता लग गया कि नहीं, ऑडियंस कुछ मजा नहीं आ रहा ऑडियंस को, पता नहीं मैं बार बार वही चीज करता रहा, कुछ नया नहीं किया। जो जो मैंने बीच में अब की बार जो नए एलिमेंट्स डाले थे या कुछ नए पंच डाले थे, बस उनके ऊपर थोड़ा ऑडियंस का ध्यान गया। बाकी जो प्रॉपर हंसने वाला सीन था, जो लगता था कि मुझे हाँ ये तो मेरा जाएगा ही जाएगा, वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा अपने मतलब मेरा अच्छा नहीं गया, कुछ ऐसा फील आया मुझे। और प्ले भी जैसे कि बैंस ने अभी बोला ही था कि वो जो पहले हुआ था वो अब की बार थोड़ा सा फील नहीं आया। बस मैं तो अपने बारे में ही बात करनी थी सर, वैसे तो और को तो सर ठीक ही है सर, आप बताइए सर। वैसे सर एक चीज और, मैं बैंस बोल रहा हूँ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰ ਔਨ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ठीक है,
कोई और भी है बोलने वाला या शुरू करा मैं? सर आई थिंक नहीं, और कोई नहीं है सर। सब तो पहला था जैकी अली काली करता मैं। जैकी जी, ये बहुत अच्छी गल है। सॉरी सर, बस ये बता दूं कि 6 मिनट रह गए सर। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, टाइम हो रहा, कल यहीं से शुरू कर लें। हाँ जी तो सर। कोई और अगर कोई बोलने वाला है तो वो भी इस बारे में अपनी अपडेट देने वाला है, तो फीडबैक वो भी दे देगा। ओके सर, ओके। है 6 मिनट है, ओके, तो ओके 6 सर। मिनट में अभी जो मीटिंग में आए हैं भवशील, उनके नाम बोल दो, मुझे ऐसे ही नहीं पता चल रहा कौन कौन आया हुआ है। हाँ जी उन सर, मैं सबके आपको बता देता हूँ। जैकी, हाँ भवशील, हाँ विक्रांत सर, जी, सुदेश सर, दीपक पाजी, गुरियान, प्रियंका। गुरियान कौन है? सर नवा बच्चा है सर, सप्तगाने अच्छा, च चलो। पार्टिसिपेट सर। ओके ओके ओके। प्रियंका, हम्म, नवदीप, अंकुश राणा, आकाश त्रिपाठी, अंकित मान, मिताली अरोड़ा, गुरप्रीत पाजी, मुकुल, विक्रांत, ईशु, रवि चौहान, तेज दविंदर मान। 18 पीपल सर। चलो, आप सबका जो है, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने ये जो ऑनलाइन सेशन है इसको अटेंड किया। इसके अलावा आप लोग जो है ना, ये तो जो लोग नहीं बोल पाए वो भी कल को अगले 5 जो हैं, 5 लोग ही हों सुबह, जो जिन्होंने कोई एक्सरसाइज की है, अपने सेंसेस के बारे में कोई ना कोई शब्द को ढूंढने का कोशिश की है, तो वो नए पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, ताकि उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट ना हो, उसको भी हम कैलकुलेट कर लें। और ठीक, मतलब जैसे अब मुझे लग रहा है कि ये 2 घंटे तक चल रही है, तो उस टाइम को और ज्यादा एक्सटेंड ना करें, इसी टाइम में ये सारी मीटिंग खत्म कर लो। उस तरह से फिर मैं भी अपना शेड्यूल कितना मैंने बोलना उतना ही रखूंगा, और कल जो यहाँ छोड़ा है इससे आगे शुरू करेंगे। और जिन्होंने जो काम किया है, कोई एक्सरसाइज की है, जो नए लोग हैं, जो अभी जिनसे मेरी बात नहीं हो पा रही, तो वो भी अपनी बात जरूर रखें, और उनको किस तरह का ये एक्सपीरियंस लग रहा है, या कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर वो अपना जो ग्रुप है जो टीएफटी वाला, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अगर फीडबैक दे देंगे, तो ताकि वो भी मैं देख लूंगा, मुझे पता चल जाएगा, और उसके माध्यम से आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। अभी तो मैं जिनको जानता हूँ सिर्फ उनको पहचान पा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए सबके लिए है कि जो जो कैसा किसी को लगा है, इस तरह का है, जो भी कोई मन में उनके प्रश्न आता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं हम, ताकि ये जो हमारी एक्सरसाइज है और ज्यादा बड़ी हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो हम वहाँ चीज 23 सेक्टर स्कूल में हम मिस कर रहे हैं, तो वो हम क्या उसकी पूर्ति यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, क्या उसका आपको कोई फायदा इससे हो सकता है। मेरा यही मतलब है कि मेरे पास जो एक एक्सपीरियंस है, वो मैं चाहता हूं कि आप घर बैठे उसका और ज्यादा लाभ लें। ऐसी मेरी एक इच्छा है। वो तभी पता चलेगा जब आपकी मुझे फीडबैक रेगुलर मिलनी शुरू होगी। तो इसी के साथ एक बार फिर आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं। सर अगर ना कोई और भी हमारे प्रश्न हुए तो हम ग्रुप में डाल देंगे सर। गुरप्रीत बोल रहा हूँ सत्य बगाने के रिगार्डिंग। और भी जो क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है सर, बिल्कुल उसको भी मैं कलेक्ट कर सकता हूँ सारा। आई थिंक बहुत अच्छी बात है। मिताली ने अपना हैंड रेस किया, वो कुछ बात शेयर करना चाहती है मिताली। हाँ 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 जी, मिताली। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन था, मतलब बात तो शेयर नहीं करनी है, एक नॉर्मल था कि नेगेटिव कैरेक्टर आपके हिसाब से कि मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेटे मैं समझा नहीं, एक बार फिर बोल दो। मैं समझा नहीं, एक बार फिर बोल दो। कि जैसे हम अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर मिताली कह रही है कि जैसे अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, तो अगर बाई चांस कोई नेगेटिव कैरेक्टर मिले एंटैगनिस्ट का और अच्छा कैरेक्टर है, तो वो इस स्टेज पे करना चाहिए कि मतलब आगे जाके जब थोड़ा करियर बड़ा हो जाएगा तब ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने चाहिए, कि स्टार्टिंग से ही ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स ग्रे शेड वाले करना हाँ, शुरू? दो चीजें हैं ना। अगर तो आप मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हो, किसी फिल्म में आ रहे हो, किसी वेब सीरीज में आ रहे हो, तो वहां तो पहले आपकी एंट्री से उस तरह का मार्का बन जाता है। तो जब आप धीरे धीरे, अब आपने ये देखना है कि आपने उस तरह से शुरू करना है अपना करेक्टर, या किसी मेन लीड में एज ए हीरो के तौर के ऊपर, हीरोइन के तौर के ऊपर उसमें आना है, तो ये आपकी चॉइस, अपनी चॉइस है। लेकिन करेक्टर कोई भी बुरा नहीं होता, किसी में भी बुरा करने के लिए उतना ही आपको एफर्ट लगता है, उतनी जी जान से प्रयास करना पड़ता है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से अपनी एंट्री चाहते हो। ठीक है सर, आई थिंक 1 मिनट रह गया है, तो आई थिंक एंड कर सकते हैं सर सेशन। हम कल कंटिन्यू कर लेंगे मिताली की डिस्कशन भी। ठीक है मिताली, आप मुझे फोन भी कर सकते हो, फोन पे भी ये बात डिस्कस कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय सभी को। प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय 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 भवशील। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट भवशील। ये देखो सारा जयंती देवी दा। आप जी बस 30 सेकंड रह गए, अपने आप बंद हो जाएगी मीटिंग। हाँ ठीक है, चलो ओके ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट, बाय बाय, ख्याल रखो, गुड नाइट। बाय बाय।